Hello students, here we are once again with JPRC Digital Study. Students, today we are going to learn about the story A Little Girl written by Catherine Mansfield. Catherine Mansfield was a well-known story writer. She was born on 1888 in Wellington, New Zealand. She was the middle child of their parents. She had two younger and two elder sisters and brothers. She was loved by them all in her family. She went to school in 1903. She joined the Queen's College of London. After completing her education in 1906, she had got the time to go to the travel of Europe. She married with George Charles Bowden. Her husband liked him very much, but she was not accepted by her mother-in-law. She did not like her. So she sent to Spa, Germany. She had written many short stories. She was died in 1923 in France. She had written many stories, and some of them are The Green Party, Miss Brill, The Doll's House, Bliss the Fly, A Cup of Tea. She was a very good story writer. In this lesson, a little child, she had described about a child of a teenage who was very coward towards their parents. She feared very much with his father. He every time scolded her. So she did not want to go against him. To know about the little girl and the behavior of her father, let's see our textbook and know the story. See your textbook. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with "Goodbye, father." And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. The little girl was so furious with his father that when he went outside, she get relaxed. इस कहानी में जो छोटी लड़की है, वह अपने पिता से बहुत डरती है. The little girl was a figure of feared and avoided. पिता के लिए वह एक ऐसी लड़की थी जो बहुत ही डरावनी थी. Every morning before going to work, प्रतिदिन सुबह काम पर जाने से पहले, he came into her room, वह उसके कमरे में आते थे and gave her a casual kiss, और उसे किस करते थे. To which she responded with goodbye, जिसकी प्रतिक्रिया में वह उन्हें अलविदा कहती थी. एंड ओ देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, और क्या अद्भुत राहत की सांस होती है व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ कैरियर्स गोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड. जब वह नीचे जो लंबी सड़क है उस पर अपने पिता के वाहन के जाते हुए स्वर को सुनती है और वह स्वर धीरे धीरे धीमा होता जाता है, तो वह राहत की सांस लेती है. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, और जब शाम के समय वह घर वापस आते थे, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, तो वह सीढ़ी के पास खड़ी होती थी. एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और हॉल में उनके तेज स्वर को सुना करती थी. ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, वह कहते थे कि मेरी चाय ड्राइंग रूम में लेकर आओ. हैज नॉट द पेपर कम येट, क्या अभी तक अखबार नहीं आया है. मदर, go and see if my paper out there. वह अपनी माँ से कहता था कि माँ,
जाइए और देखिए कि क्या मेरे कागज आ गए हैं। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे चप्पल भी लेती आइएगा। केजिया मदर वुड कॉल टू हर। केजिया, which was the name of the little girl, her mother called her, Kezia, come here. If you are a good girl, अगर तुम एक अच्छी लड़की हो, you can come down, तो तुम सीढ़ी से नीचे आओ, and take off father's boots, और अपने पिता के जूतों को निकालो। Slowly, the girl would slip down the stairs. उनकी बातों को सुन करके धीरे धीरे वह लड़की जिसका नाम केजिया है, वह सीढ़ी से नीचे उतरती है। More slowly, still across the hall. और सीढ़ी पर जिस तरह से वह धीरे धीरे उतर रही थी, उसकी अपेक्षा वह हाल में और धीरे धीरे चलती जाती है, क्योंकि वह अपने पिता से बहुत भयभीत रहती है, वो डरती है। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और धीरे से उसने ड्राइंग रूम का दरवाजा खोला। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन। इस समय तक उसके पिता ने ऐनक लगा रखा था। एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, और इस तरह से वह अपनी उस छोटी सी लड़की को घूर रहे थे कि वह लड़की और भी डर गई। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। उन्होंने कहा, केजिया बहुत अच्छे, अंदर आओ और मेरे जूतों को उतार कर बाहर ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज एक अच्छी लड़की होगी? आई डोंट नो फादर, उसने कहा, पिताजी मुझे नहीं मालूम। वो इतनी डरती है कि उसकी बातों में लड़खड़ाहट रहती है। वह कहते आई डोंट नो फादर, वो कहती पिताजी मुझे मालूम नहीं है। यू डोंट नो, इफ यू सेटल लाइक दैट मदर विल यू हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह से तुम तुतलाती रही, तुम्हारी आवाज लड़खड़ाती रही मेरी माँ की तरह से, तो मैं तुम्हें भी लेकर डॉक्टर के पास जाऊंगा। She never stuttered with other people. अन्य लोगों के साथ कभी भी वह stuttered में सकलाती नहीं थी, तुतलाती नहीं थी। Had quite given it up. यहाँ तक कि उसने तुतलाना और अकलाना छोड़ दिया था। But only with father, लेकिन पिता के साथ, because then she was trying to so hard to say the words properly. वह शब्दों को इतनी कठिनाई से कह पाती थी कि यही कारण था कि वह उसके शब्दों में, उसके आवाज में हकलाहट का भाव आ जाता था। What's the matter? क्या बात है? What are you looking so raised about? तुम इतनी कमजोर से क्यों दिख रही हो? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. उन्होंने कहा कि माँ, मैं चाहता हूँ कि आप इस लड़की को सिखाओ not to appear on the brink of suicide, कि वह इस तरह की अपना प्रदर्शन इस तरह का ना करे कि जैसे वह मर रही हो। Here Kezia, carry my teacup back to the table carefully. उन्होंने कहा, सुनो केजिया, मेरा चाय वाला प्याला जो है, चाय का कप जो है, इसको वापस कमरे में ले जाओ और सावधानी पूर्वक ले जाना। He was so big, his hands, his neck, especially his mouth when he yawning. Thinking about him alone was like thinking about a giant. In this very line, the writer prescribed about the structure of the father, how he looked like, कैसे दिखते थे वह। He was so big, वह बहुत बड़े थे। His hands and his neck, especially his mouth, उनका हाथ, उनकी गर्दन और विशेष रूप से उनका मुंह, when he yawned means होता है जम्हाई लेना। विशेष रूप से उनका मुंह बहुत बड़ा था जब वह जम्हाई लिया करते थे। Thinking about him alone was like thinking about a giant. अकेले में उनके बारे में विचार करना जैसे एक दैत्य के बारे में विचार करने जैसा। मीन्स उनका शरीर जो था बहुत ही विशालकाय था। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. On Sunday afternoon means रविवार की दोपहर को grandmother sent her down. दादी माँ ने उसे नीचे भेजा to the drawing room में to have a nice talk with father and mother, कि वह अपने माता और पिता से खूब अच्छी बातें करे। But the little girl
always found mother reading and father stretched out on the sofa. लेकिन उस छोटी सी लड़की को वहाँ दिखता क्या है? वो अपनी माँ को पढ़ते हुए पाती है और पिता को उस लंबे से सोफे पर लेटा हुआ पाती है जहाँ वह अपना पैर पसार कर लेटे हुए हैं. His handkerchief was on his face. उसकी हैंकी कहाँ है? उसकी रुमाल कहाँ है? उनके चेहरे पर है. His feet on one of the best cushions. और उनके पैर जो सबसे अच्छा तकिया उनके घर में मौजूद था उनमें से एक तकिए पर रखा हुआ है. Sleeping soundly and snoring. जो कि खर्राटे भरते हुए गहरी नींद में सो रहे हैं. She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched. She sat on a stool. वह एक स्टूल पर बैठ गई. Gravely watched him. और गंभीरता पूर्वक उन्हें देखने लगी. Until he woke and stretched. तब तक देखने लगी जब तक कि वो उठें और अपना हाथ फैलाते हुए कहें. Then looked at her. उससे पूछें और उसके बारे में जानें. Don't stare so, Kezia. You look like a little brown owl. उन्होंने कहा कि इस तरह से मत देखो केजिया, इस समय तुम बिल्कुल एक भूरे रंग के उल्लू के समान दिख रही हो. One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week. एक दिन ठंडी के मौसम में जब वह अपने कमरे में अंदर थी, उसकी दादी ने उसे बताया कि उसके पिता का जन्मदिन आने वाला है. And suggested और उसे सुझाव दिया she should make him a pin cushion for a gift. कि वह उसके लिए उनके लिए वह एक सुंदर और आरामदायक तकिया बनाए. Out of a beautiful piece of yellow silk, जो कि पीले रंग के रेशमी कपड़े में हो. Laboriously with a double cotton, the girl stitched 3 sides. Laboriously means बड़ी मेहनत के साथ उस छोटी सी लड़की ने कपड़े को डबल फोल्ड किया और उसको 3 तरफ से सिल दिया और एक बैग का आकार दे दिया. बट व्हाट टू फिल इट विद, लेकिन उसने विचार किया कि इसमें वह क्या भरे. दैट वाज द क्वेश्चन. प्रश्न यही था कि उसमें क्या भरा जाए. द ग्रैंडमदर वाज आउट इन द गार्डन, क्योंकि दादी बाहर बगीचे में थी. एंड शी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स. और वह कतरन की खोज में, टुकड़ों की खोज में कि क्या उसमें भरा जाए, उनको रिलैक्स प्रोवाइड करने के लिए वह अपनी माँ के कमरे में गई. ऑन द बेड टेबल सी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर. वहाँ उसने देखा कि मेज पर कागजों कई सारे कागज रखे हुए हैं. गैदर्ड देम अप, उसने उन सभी को इकट्ठा किया. टोर देम इनटू टिनी पीसेस, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया. एंड स्टफ्ड हर केस. Then sewed up the 4th side, और उन सबको उस केस में जो उसने बैग बनाया था, पिलो केस, उसमें भरा और भर करके जो चौथी तरफ का हिस्सा था उसको भी उसने सिल दिया. That night there was a hue and curry in the house. Hue and curry means the noise, शोर शराबा. उस रात घर में बहुत शोर था. Father's great speech for the port authority had been lost, क्योंकि पिताजी का जो पोर्ट अथॉरिटी के सामने बताया जाने वाला संवाद था, भाषण था, उसके कागज जो थे वह गायब हो गए थे. रूम्स वर सर्च्ड, कमरों में खोजा गया. सर्वेंट्स क्वेश्चन, नौकरों से भी पूछा गया. फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, और अंत में माँ केजिया के कमरे में आई. केजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर ऑन अ टेबल इन आवर रूम. उन्होंने कहा केजिया, मेरा मानना है कि क्या तुमने, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या तुमने मेरे कमरे में मेज पर कोई कागज देखे. ओ यस सी सेड, उसने कहा हाँ मैंने देखे थे. आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने तो मेरे सरप्राइज के लिए उन सभी को फाड़ दिया. व्हाट, स्क्रीम्ड मदर, उसकी इन बातों को सुन करके माँ चिल्लाई. क्या? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट. उन्होंने कहा कि इसी क्षण नीचे डाइनिंग रूम में आओ. एंड शी वाज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वाज पेसिंग टू एंड फ्रो. पेसिंग टू एंड फ्रो मींस यहाँ इधर उधर टहल रहे थे. पिताजी उसी डाइनिंग रूम में वह आई, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक.
पिताजी अपने हाथों को अपनी पीठ पर टिकाए हुए इधर उधर टहल रहे थे। वेल ही सेड शार्पली, उन्होंने जोर से कहा, बहुत अच्छे। मदर एक्सप्लेन, माँ ने उनको इस बारे में बताया। ही स्टॉप्ड, वह रुके, एंड स्टीयर्ड एट द चाइल्ड, और उन्होंने उस बच्चे की ओर घूरा। डिड यू डू दैट, क्या तुमने यह किया? नो, शी विस्पर्ड, वह धीरे से बोली, नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं किया। मदर गो अप टू हर रूम, माँ उसके कमरे में गई एंड फेस डाउन द डैम्ड थिंग, और वह चीज ले आई, वह कुशन ले आई जो उसने बनाया था। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, देखें लड़की ने यही बनाया है। उस क्षण बिस्तर रखते हुए उन्होंने कहा, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, सी ले इन द shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Crying too much to explain means अपनी बातों को बताते हुए वह बहुत अधिक रो रही थी। सी ले इन द shadowed room, और वह अंधेरे कमरे में लेट गई। Watching the evening light make a sad little pattern on the floor means शाम की उस लाइट्स को देखने लगी जो कि उसके लिए एक दुख का माहौल वहां पर क्रिएट कर रही थी। Then father came into the room with the ruler in his hand. तभी उसके पिताजी हाथ में एक डंडा लेकर के उसके कमरे में आए। I am going to beat you for this, he said. उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए तुम्हारी पिटाई करने जा रहा हूँ। Oh no, she screamed, hiding under the bedclothes. वह बिस्तर पर जो चादर थी उसके अंदर छुपते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारिए। वह चीखी। He pulled them aside, वह उसे खींचकर एक तरफ ले गए। Sit up, he ordered, उन्होंने कहा बैठ जाओ। And hold out your hands, और अपना हाथ आगे बढ़ाओ। You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. तुम्हें एक बार यह सिखा देना जरूरी है, तुम्हें यह सबक सिखाना जरूरी है कि तुम्हें जिस चीज से मतलब न हो उसे तुम मत छुआ करो। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, उन्होंने कहा लेकिन, उस लड़की ने बताया, लेकिन यह तो आपके जन्मदिन के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन अ रैंप पिंक पाम्स, उसकी जो गुलाबी रंग की हथेलियां थी उस पर डंडा जोर से नीचे आया। हाउस और लेटर व्हेन ग्रैंडमदर हैड रैप्ड हर इन अ शाल, कुछ घंटों के बाद जब दादी माँ उसे अपनी शॉल में लपेटे हुए थी, एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर एंड द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और अपनी कुर्सी पर बैठी हुई धीरे धीरे हिल रही थी, तो वह छोटी बच्ची उनकी गोद में चिपकी हुई थी। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी शॉक्ड, उसने सिसकियां भरते हुए कहा कि ईश्वर ने पिता क्यों बनाया। हियर्स क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, उन्होंने कहा कि अपने आंसू पोंछ लो, यह एक साफ रुमाल है। गो टू स्लीप इट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, तुम सुबह तक इन सब के बारे में भूल जाओगी, जाओ और सो जाओ। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने पिता के बारे में बताने का प्रयास किया, बट ही वाज टू अपसेट टू लिसन टुनाइट, लेकिन उसने कहा कि मैंने पिताजी को इस बारे में बताना चाहा, लेकिन वह बहुत ही गुस्सा थे, बहुत ही परेशान थे, इसलिए उन्होंने इसे नहीं सुना। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन वह बच्ची इस विषय में कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। अगली बार जब उसने उन्हें देखा, क्विकली पुट बोथ हैंड बिहाइंड, उसने जल्दी से अपना दोनों हाथ पीछे कर लिया, एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और उसका जो गाल था वह लाल हो गया। Dear students, read the chapter till here. With the help of this video, we will meet with the next part of the lesson in the next video. Till then, thanks.